Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 19th October 2021. So let's start today's discussion. The first article states that Army trains officers posted along LAC in Tibetology. Now, talking of the background, it is basically speaking of Indian officers who are actually been deployed near the borders of Tibet, so that living in that terrain is little difficult for them, and so to have a easy life, it is a training, or we can say it is a course that Indian soldiers have been given so that they can know about that area. So, lamas from Bomdila Monastery. This point is important for us, as you can include this in Indo-Tibet relationship, how the India's relations have been improving or been in a good phase with Tibet. So you can use this point in your answers also. Bomdila Monastery engaged for teaching the first batch of 15 soldiers across in May. Now, within the view of orienting the officers and man posted at LAC, LAC in Tibetan culture and also preparing them for a better understanding, the Information Warfare Army has begun a course in Tibetology. Now, what does Tibetology means? Tibetology simply means to know about the terrain of that area, to know the culture, to know the climate, to know everything, A to Z things about the Tibet, so that it will be easy for the Indian soldiers to be deployed there. So, begin a course in Tibetology in a tie up with the Central Institute of Himalayan Cultural Studies in Arunachal Pradesh. So, it's a tie between, or we can say it is a collaborative action between Arunachal Pradesh with Tibet, or we can say Tibet Monastery. The first batch of Indian participant soldiers were trained from March to May. March to May this year, and understanding the Tibetan tradition, democracy, political influence, and empowering a man to understand that where are they going to be operated. Okay, so that therefore that place is important for the Indian soldiers to know, so that it will be easy for them. The Army's command has identified 7 institutes for Tibetology across the country, two of which are in the northern east. The one is in Namgyal Institute of Tibet in Sikkim. So all over world, if we speak, there are in total, it has been identified that 7 institutes are there that let you know, or that teaches you about Tibetology. It teaches you about Tibetology, and out of these seven, two are in the India, only in the northeastern part. How? The one is in Arunachal Pradesh, where its collaborative is done, and second is in Sikkim, the Namgyal Institute of Tibetology. Namgyal Institute of Tibetology. So there are two institutes in India, only in the northeast, which gives you the knowledge about Tibetology. Second course will start soon, and till now 150 soldiers have been trained, or been, we can say, have been trained about this Tibetology. A long course was being planned and proposed for 3-month course. The officers who are trained will function as a trainer in the battalion in few years, and will have a sizable number of personnel with understanding of Tibetan issues. So the soldiers, or the people who have attended or who have completed the training, they will work as a senior authority to let the upcoming soldiers know about Tibetology, or to know the battalion more about that area. During the 42 days of preliminary course, Tibet history, geopolitical, current political dynamics were covered in the form of lectures, case studies, said the officer. Lamas who were proficients in Tibetan issues were hired from Bomdila monasteries to teach the courses, and therefore it states that Lama from Bomdila monastery came to taught them. So it basically happened in Arunachal Pradesh only, but the teachers, or we can say the gurus, the lamas, were from Tibet to know about that area. So you can use this point. This point can be there in
prelim also, that is there any such scheme or is there any such plan done in India. Secondly, you can use this point in your answer writing stating the good relations between India and Tibet. Now we'll move to the next article. The next article states that Mumbai lost 40% green cover between 1991 to 2018. Now this is for you to update your knowledge. The data that has released in context of Mumbai, that what is the current situation of Mumbai when it comes to ecosystem, ecology or environment. City lost 81% of its open land, says the survey. First of all, if we speak of Mumbai as a city, half of the city is actually not the natural one. It is built up, or we can say a built island, or we can say a builded land है मुंबई का आधा पार्ट. सेकेंडली उसमें से भी जो ओपन एरियाज जब बने थे उस टाइम पे जितने ओपन एरियाज थे उसमें से 81% ऑफ द ओपन एरियाज अब जो हैं कवर अप हो चुके हैं या यूज्ड अप हो चुके हैं. मुंबई लॉस्ट 81% ऑफ द ओपन एरिया. सो ये क्या है? दिस इज द ओपन एरिया और द ओपन लैंड एंड barren without any vegetation. 40% of the cover, green cover. 40% of the green cover. Third is 30% of the water bodies. Water bodies between 1991 to 2018, while the build-up area rose to 66% in the same place. So the places that have been covered or used by the people, out of this 66% of rise in buildings and infrastructures have been seen between the years of 1991 to 2018. It concludes that city witnesses 2 degrees Celsius average temperature rise from across the 27 years. लास्ट 27 ईयर्स से यूजुअली हमारा जो एवरेज ग्लोबली देखा जा रहा है दैट इज़ 1.5 डिग्री और 1 डिग्री. बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया में ये नोटिस किया जा रहा है फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स के रिकॉर्ड के हिसाब से 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल ईयर्स ऑफ मुंबई. Researchers from the Faculty of Natural Science, Jamia Millia Islamia in New Delhi, Osmania University in Hyderabad, Aligarh Muslim University in Uttar Pradesh, throughout their study, urban heat island dynamics in response to the land use in the coastal cities of Mumbai. ये एक बुक पब्लिश किया था which studied the coastal area or the areas of Mumbai. ठीक है. So published in the peer reviewed the Springler Journal Society, sensing that the phase of urbanization and landscape transformation. So डेटास के हिसाब से क्या एनालाइज किया गया है कि सबसे पहले अर्बनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस दिया मुंबई सिटी को एंड सेकेंड इज़ द लैंडस्केप. ठीक है. Landscape, it is expected that urban heat island intensity will further increase in the city. That means currently जो 2 डिग्री का डिफरेंस या 2 डिग्री का इंक्रीज दिखा रहा है वो आगे जाके और भी आगे बढ़ सकता है. Secondly, by using the satellite imagery, NASA's data set पे जो अवेलेबल मिला हमें डेटा अबाउट द मुंबई का नेचुरल सैटेलाइट के थ्रू जो पिक्चर्स मिला, द ऑथर स्टडीड एन एरिया ऑफ 603 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मुंबई रीजन, अर्बन एंड सबअर्बन सबको मिला के वो लैंड यूज और कवर मतलब जो है जो एक्चुअल एरियाज थे वो अब चेंज हो चुके हैं एंड इट इज़ फुल्ली कवर्ड ऑल ओवर मुंबई की अगर हम बात करें. सेकेंडली बाय द पिक्चर इट शोड द एटमॉस्फेयर जो हमारे इधर पल्यूटेड हो चुका है. So this were the 2 things that were studied by using the satellite imagery provided by the NASA's database. The extreme heat that one's experience while the strolling through the urban landscape is caused because of the urban heat. Okay, एक होमवर्क आप लोग के लिए है. यू विल लेट मी नो व्हाट डज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट मीन्स. ठीक है. सो इट इज़ रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ मुंबई ओनली. यू विल लेट मी नो व्हाट डज अर्बन हीट आइलैंड effect means. Third is last one is the health risk. This will not only deteriorate the urban thermal
environment, but also increase the serious risk of health for the city dwellers, because increase in temperature will automatically increase population, increase global warming. It will affect the ecology, and same way it will affect the humans as well. So this was the data which was recently released in context of Mumbai. Now, next article is important for us from IR perspective, and somehow IR and culture also. Why IR and culture? You can use this point in your answer writing as well as prelims may also it can be asked. Now, Kushinagar connects टू श्रीलंका. कुशीनगर कनेक्ट्स टू श्रीलंका का क्या मतलब है? सिंपली अगर हम इसकी बैकग्राउंड अगर बात करें, रिसेंटली करेंटली कुशीनगर अगर हम बात करेंगे दैट इज़ इन यूपी, राइट. यूपी में वन ऑफ द एयरपोर्ट इज़ बिन स्टार्टेड और जो इनॉग्रेट होगा अभी, विच इज स्टेटिंग दैट दिस एयरपोर्ट विल बी इट विल इंक्रीज द कनेक्टिविटी फॉर द मॉन्क्स, फॉर द टूरिस्ट फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया. वाई? बिकॉज कुशीनगर अगर हम बुद्धिज़्म की पर्सपेक्टिव से बात करें, कुशीनगर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध. ठीक है, विल नो वाई. अगर जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री का बेसिक पढ़ा होगा दे विल नो. एंशियंट हिस्ट्री में बताया गया है क्यों कुशीनगर इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग, द मॉन्क्स. ठीक है, जो श्रीलंका में जो हमारे मॉन्क रहते हैं, दे आर ऑल्सो अ सेंटर ऑफ नॉलेज फॉर बुद्धिज़्म. सो इसके वजह से टू डेवलप द रिलेशन ऑल्सो समहाउ वी कैन से ये चीज़ किया गया है. सो आर्टिकल को पढ़ेंगे एंड देन यू विल नो कि क्या एक्चुअल रिलेशन है कुशीनगर और इंडिया के बीच में व्हेन इट कम्स टू बुद्धिज़्म. सो प्रीमियर महिंदा सन to lead 125 members team at airport opening by PM Modi. So when Prime Minister Narendra Modi declared an open Kushinagar International Airport in Uttar Pradesh on 20 अक्टूबर, दैट इज़ कल इसका इनाग्रेशन होने वाला है 20 अक्टूबर. A sizable Sri Lankan contingent led by the members of the first family will be present. फर्स्ट फैमिली इज़ दी मॉन्क्स, जो मतलब जो ओरिजिनल मॉन्क्स जहाँ से चालू हुआ था बुद्धिज़्म इन श्रीलंका, दे विल कम एंड अटेंड द इनाग्रेशन एंड समहाउ इट इज़ मेड फॉर देम ऑल्सो टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी एंड इंक्रीज द गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. So, Sports Minister Namal Rajapaksa, the nephew of President Gotabaya Rajapaksa and the son of Prime Minister. Okay, when it comes to Sri Lanka, हमें पता है श्रीलंका का जो पावर है वो दोनों भाइयों के बीच में बटा है. वन इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड सेकेंड इज़ द प्रेजिडेंट. ठीक है, सो जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे वहाँ के महिंदा राजापक्सा, उनके बेटे जो है नमल राजापक्सा, वो लेके आने वाले हैं इन मॉन्क्स को इंडिया में एंड फॉर the ceremony we can say. So will travel to Uttar Pradesh along with the ministerial colleagues of group of 100 Buddhist monks to attend the event according to the officials. कितना बोला है? 125. So 100 are the monks, 20 are the ministerial colleagues जो कि श्रीलंका से, 25 जो कि श्रीलंका से आएंगे. Now Buddhist circuit is important for you. Yeah, many points are there that you should note. It is important for you. First of thing is that कि ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, it is not only to connect Sri Lanka, but it is basically to connect the places or the countries where Buddhism is, we can say Buddhism is their major part of their religion. So the airport is expected to provide seamless connectivity to the tourists from Sri Lanka. सबसे पहले, ठीक है, श्रीलंका के साथ अगर हम बात करें, जापान में भी बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता है. देन तैवान में भी बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता है. तैवान के साथ अगर हम बात करें साउथ कोरिया में भी बुद्धिज़्म, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब जगह को कनेक्ट करेंगे इंडिया, और मतलब ये एयरपोर्ट उसी रीज़न से बनाया जा रहा है. ठीक है. सेकेंडली, so on. Kushinagar is a center of Buddhist circuits which consists of the pilgrimage sites of Lumbini, Sarnath and Gaya.
बोध गया जिसको हम बोलते हैं। सो आप लोग को मुझे ये बताना है लुम्बिनी में क्या हुआ था, सारनाथ में क्या हुआ था एंड बोध गया में क्या हुआ था व्हेन इट कम्स टू द लाइफ ऑफ बुद्धा और व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बिकॉज कुशीनगर की हम बात करें, कुशीनगर वाज द प्लेस जहाँ पे उन्होंने अपने सर्मन्स को नॉलेज दिया था, फर्स्ट सर्मन जिसको हम महापरिनिर्वाणा भी बोलते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर कुशीनगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बुद्धिज्म्स पर्सपेक्टिव। So, which consists of the pilgrimage sites at Lumbini, Sarnath, Gaya. Buddhist pilgrims consider Kushinagar as a sacred site where Buddha delivered his last sermon or attained the महापरिनिर्वाणा और साल्वेशन जिसको हम बोलते हैं। सो ये जो फ्लाइट है ये कल होने वाला है और कोलंबो से 125 मेंबर्स आने वाले हैं, डेलीगेशंस आने वाले हैं, बुद्धिस्ट आने वाले हैं इंडिया में और वो लोग उन लोग का एक तरह से टू इंक्रीज द रिलेशनशिप दे आर ब्रिंगिंग अ गिफ्ट फॉर इंडिया। नाउ ये गिफ्ट क्या है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। दे आर ब्रिंगिंग टू डिफरेंट पेंटिंग्स, टू डिफरेंट मुराल पेंटिंग्स वो लोग अपने साथ लाने वाले हैं इंडिया में, विच इज़ पेंटेड बाय द रिनॉल्ड श्रीलंकन आर्टिस्ट सोलेस मेंडिस। ठीक है, जिसमें जो सबसे पहला वाला मुराल पेंटिंग है इट डिपिक्ट्स, उसका जो नाम है पहले वाला मुराल पेंटिंग का, उसका नाम है अराहट भिक्खू। अराहट भिक्खू बेसिकली पेंटिंग बता क्या रहा है। सो हमें पता है जब अशोका का रीन था इंडिया में, उस टाइम पे टू प्रमोट और इनकरेज बुद्धिज़्म अशोका ने अपने बच्चों को सब जगह भेजा था टू इनकरेज इट, इन दैट वे ओनली उन्होंने अपने बेटे को श्रीलंका भेजा था टू स्प्रेड द नॉलेज अबाउट इट, राइट। सो उस टाइम की बात ये उस पेंटिंग में यही दिखाया जा रहा है, द सन ऑफ एम्परर अशोका डिलीवरिंग द मैसेज ऑफ बुद्धा टू किंग देवन पित्सा ऑफ श्रीलंका। सो वो फर्स्ट मुराल पेंटिंग इज स्पीकिंग अबाउट द encouragement डन बाय किंग अशोका सन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म। द अदर शोज द अराइवल ऑफ थेरी भिक्कुनी। थेरी भिक्कुनी, ठीक है, थेरी भिक्कुनी संघमित्रा भी बोलते हैं। सो ये उनकी बेटी थी, एम्परर की बेटी। सो वो जो है वहाँ पर बोधि ट्री की सैम्पलिंग्स लगा रही हैं, वैसा वो पेंटिंग दिखाया गया है सेकेंड वाला। So, the arrival of Theri Bhikkhu Sanghamita, the daughter of emperor in Sri Lanka, bearing the samplings of sacred Bodhi trees under the Siddharth Gautam, is to be believed to have obtained enlightenment. So, दोनों ही उनके बच्चों को related जिन्होंने श्रीलंका में actual origin लाया बुद्धिज़्म का, उनकी paintings को they will give India as a gift. The gesture comes at the time when Sri Lanka and India have agreed to strengthen the relationship related to Buddha heritage. ठीक है, ऑल दो इंडिया एंड श्रीलंका के बहुत सारे चीज़ों में रिलेशंस ख़राब है व्हेन इट कम्स टू फिशिंग। ठीक है, या हम बोल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस LTT, हमारे जो तमिलियंस हैं वहाँ पे उनको लेके बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी रिलेशंस कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं। बट देयर आर द अदर पार्ट ऑल्सो वे वी आर ट्राइंग टू डेवलप आर रिलेशनशिप। जैसे कि फर्स्ट कंटेंजेंस ऑफ वैक्सीन जो है इंडिया ने दिया था श्रीलंका को। सेकेंडली ये जो हम कर रहे हैं या ये जो इनिशिएटिव इंडिया कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो टू इम्प्रूव द रिलेशंस विद द साउथ एशियन कंट्रीज। So, in the decay of the civil wars which coincides with China's growing influence, New Delhi seems to keen on recasting the image as a friend using the religious or cultural diplomacy. Obviously, political चीज़ों में अगर हमारा relation खराब है तो we'll use the other side of the coin by improving it in the name of religion or culture. Although it is true that we want our relations to be good with Sri Lanka. When India sent the first consignment of 5 lakh doses of Covishield vaccines to Sri Lanka in January, the Indian High Commission in Colombo tweet linked to the arrival blessed बोया डे इट्स बेसिकली उनकी लैंग्वेज में बोया डे इज़ दी फुल मून डे उन्होंने ट्वीट किया था व्हेन जब ये डोसेज उनको दी गए थे। सो ऑन ग्रोइंग द एम्फेसिस ऑफ द शेयर्ड बुद्धिज्म टाइज द senior political scientist Jayadeva said, a cynic might say this mark as a beginning of soft saffronization
Saffronization is basically bilateral ties. But it signals that India is going to have more assertive foreign policies stance to Sri Lanka. ठीक है. सो मुराल पेंटिंग, दो कौन से मुराल पेंटिंग है उस पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. आप मुझे बताएंगे कि सारनाथ, बोधगया और लुम्बिनी, ये तीनों जगह हमारे बुद्धा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट थे. देन कुशीनगर का मैंने आपको बता ही दिया, महापरिनिर्वाणा, वो आपको याद रखना है. ठीक है. पहला कंटेंट मीटिंग हो रही है, ये सिर्फ श्रीलंका को लेकर नहीं है. ये भी स्टेटमेंट आनेगा कि ओनली फॉर द कनेक्टिविटीज़ ऑफ श्रीलंका. सबसे पहले ओनली आया तो समझ जाओ कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग है. उसके साथ बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ जो कि बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, सिंगापुर, सो वो सब के लिए भी ये इनिशिएटिव उठाया गया है. Now we'll move to the next article. The next article states that improving the livestock's breeding. Now improving the livestock breeding is how important for you. Here two main schemes के बारे में बात किया है which were implemented in India already, but उसमें थोड़ा सा enhancement या improvisation की बात की जा रही है. So उस पर्सपेक्टिव से ये जो दोनों लाइफ स्टॉक्स के बारे में है वो आपको जानना ज़रूरी है. When it comes to livestock, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन मैनी ऑफ द स्कीम. जैसे कि अगर हम बात करें, एक स्कीम था कामधेनु. आप मुझे बताएंगे कामधेनु स्कीम क्या है. कामधेनु स्कीम 2019 में ही लाया गया था फॉर दी वी कैन से डेयरी सेक्टर्स. सो रिवाइज्ड स्कीम्स विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड traceability standards of India's livestock. Now under this they are talking about the two livestocks. एक है हमारा गोकुल मिशन, या जिसको हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन बोलते हैं, एंड अनदर वन इज द नेशनल लाइवली स्टॉक मिशन. ये दो स्कीम्स जो हैं पहले से ही इम्प्लीमेंटेड हैं इंडिया में, बट उसको और इम्प्रोवाइज करने की बात कर रहे हैं अंडर दिस आर्टिकल. सबसे पहले चीज़ अगर मैं बात करूँ अबाउट दिस राष्ट्रीय गोकुल मिशन. राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अगर हम बात करें तो ये इनिशिएटिव जो है 2014 में लाया गया था. बेसिकली इट फोकस्ड ऑन द जेनेटिक अपग्रेडेशन और जेनेटिक एडवांसमेंट ऑफ द बोवाइन पॉपुलेशन. बोवाइन is we can say is from the species of cows and cattle only. उसके जेनेटिक अपग्रेडेशंस के रिलेटेड ये इनिशिएटिव लाया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन. वेयर एज नेशनल लाइवली स्टॉक मिशन की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारी सारे ही मतलब एनिमल रेयरिंग में जितने भी एनिमल्स आते हैं, बफेलो, पाउट्री, शिप, गोट्स, पिग्स, ये सब के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें कि फार्मर्स को एक जॉइंट वेंचर्स या एक एनकरेजमेंट देंगे सो दैट दे कैन इंक्रीज दी वी कैन से वर्क और they can increase their productivity. Because when it comes to livestock in India, 90% of India's population, actually 90% of we can't say, but approximately 133 लाख करोड़ का जो population है उसमें से मिनिमम अगर हम बात करें 200 तक की जो population है, 200 मिलियन तक के populations जो हैं, ये लोग आज के टाइम भी लाइफ स्टॉक प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं इसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ पाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन से. ठीक है. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद कहीं ना कहीं द लैक ऑफ सप्लाई एंड डिमांड चेन, उनको वो चीज़ का पता ही नहीं है. बिकॉज इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की रेयरिंग, एनिमल रेयरिंग की बात करें, इंडिया का एक्सपोर्ट की बात करें, मीट्स को लेके या किसी चीज़ को लेके, ये चीज़ नोटिस किया जाता है कि हमारे साउथ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमारे 7 सिस्टर्स, दे आर समहाउ बीइंग द स्टेट्स जो कि ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स करते हैं ये सब चीज़ के. सेम वे में अगर हम मिल्क की बात करें तो बहुत सारे जगह हैं, रूरल एरियाज़ हैं जो कि इसका काम करते हैं बट उसका उतना बेनिफिशियली नहीं दिखा पाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कनेक्टिविटी. सो टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टेटेड कि दे विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज और एनहांस द एग्जिस्टिंग स्कीम्स इन इंडिया. To the revised version of Rashtriya Gokul Mission and National Livestock Mission proposed to bring focus on the entrepreneurship, development and breed of buffalo, poultry, sheep, pigs and goats.
ठीक है, जिसमें कि अगर फार्मर्स हैं, सेल्फ फार्मर्स हैं, तो उनको वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स देंगे जिसकी वजह से वो करेंगे। अगर ग्रुप्स हैं तो ग्रुप को अगर कोई ग्रुप मतलब एक कंपनी है या ऐसा कुछ है तो उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा फॉर देयर वर्किंग। The breed multiplication farm component of Rashtriya Gokul Mission is going to provide a capital subsidy of 200 lakh for setting up this breed farm, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 200 मिल्क काउ ये सबको ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें पाउट्री को लेकर, पाउट्री को जो है हमारे नेशनल लाइवली स्टॉक मिशन के अंडर में दे विल प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख का एक इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे विल प्रोवाइड, जिसमें कि फार्म जो पेरेंट फार्म्स हैं जो वहाँ पर 1000 चिक्स को कैपेसिटी रेयर करने का एक प्रॉपर फार्म प्रोवाइड करेंगे, जिसमें दे विल हैव अ प्रॉपर मॉडल जिसके हिसाब से दे विल वर्क एंड प्रोड्यूस एटलीस्ट 500 एग्स डेली। ऐसे जिस मॉडल उसको वो लोग फ़िलहाल यूज़ करने की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि 1000 चिकन्स, ठीक है, एंड डेली 500 एग्स का तो प्रोडक्टिविटी होगा, ऐसा वो उनका मानना है इस मॉडल के अंडर। Then when it comes to the context of ships or goats, so they will provide a capital subsidy of 50% of, or we can say 50 lakh रुपीज़ का सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर जो मॉडल वो लोग फेस कर रहे हैं या ला रहे हैं उसमें जो ब्रीडर है, जो फार्म है, दे विल डेवलप अ होल चेन जिसमें कि एनिमल्स जो हैं उनको ओपन मार्केट में सेल किया जाएगा। बिकॉज अगर हम बात करें पिग्स को लेकर या फिर शिप्स को लेकर तो बहुत जगह पे इनको कंज्यूम भी किया जाता है, तो दे विल प्रोवाइड एन ओपन मार्केट जहाँ पे इनकी हम बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स हो पाए। Each entrepreneur can avail the assistance of breeders with 500 does and 25 bucks of animal। पिग्स को लेके बात करें तो पिग्स को लेकर भी 30 लाख का सब्सिडी उनको दिया है। सो इन एंटरप्रेन्योर्स विल एड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रीडर्स टू विथ 100 सोज एंड 10 बोर्ड्स एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 2400 पिगलेट्स इन अ ईयर। तो हर मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बीफ को या बोलेंगे बीफ तो नहीं बट पिगलेट्स को लेके ये मीट्स को लेकर कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की प्रोडक्टिविटी इज़ मोर टू दिस, जिसकी वजह से इंडिया कम्स अंडर द सेकेंड और फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ मीट इन द वर्ल्ड। ठीक है, therefore they are trying to increase the productivity and that will help not only the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बट ऑल ओवर दी इंडिया जो लोग इस पे काम करते हैं। सो ऐसे 2 मिशंस हैं, आप ये दोनों मिशंस को प्रीलिम्स और आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हैं। अगर कि एनिमल या फिर डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड आया कि कौन से स्कीम्स करेंटली चल रहे हैं, जैसे मिल्क को लेके अगर मैं बात करूं तो कामधेनु चल रहा है, अभी हमने नेशनल मिशन देखा, नेशनल लाइवली स्टॉक मिशन देखा, गोकुल मिशन देखा। गोकुल मिशन को लेकर रिसेंट एनहांसमेंट ये भी बोला कि दे विल प्रोवाइड अ ई गोपाला ऐप जिसपे से आपको रिसेंट ट्रैकिंग मिल जाएगा कितने कहाँ पे ब्रीडिंग्स हैं प्रोवाइडेड है। तो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। सो यू शुड रिमेंबर्स कि कौन से जो स्कीम है उसका क्या मतलब है। ठीक है, सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।